ठीक है बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं स्क्रू गेज की तरफ। ठीक है, स्क्रू गेज, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज ऐसा डिवाइस है बच्चों जो कि और माइन्यूट मेजरमेंट्स कर सकता है। ऐसे एक इलेक्ट्रिसिटी वायर जो हमारे घर पे आते हैं, कॉपर वायर, वो कॉपर वायर का डायामीटर तक आप मेज़र कर सकते हैं स्क्रू गेज की मदद से। ठीक है, तो चलिए, बिफोर आई टेल एनीथिंग, लेट अस सी दिस एनिमेशन बेस्ड ऑन स्क्रू गेज। Screw gauge, most commonly known as the micrometer screw gauge, is an instrument used widely for precise measurement of small objects such as wire. The word screw gauge is used because this device is most commonly used to measure the diameters of the wire, which in turn are governed by standard numbers, which are called as standard wire gauge. The word micrometer represents the principle on which the device works, which is called the principle of micrometer screw. Principle of micrometer screw. When an accurately cut single-threaded screw is placed inside a closely fitted nut and rotated, in addition to the circular motion, there is also linear motion of the screw along its axis. This distance moved by the screw in one complete rotation of the screw is equal to the distance between its two consecutive threads. This distance is called the pitch and is always constant. In this way, the small distances moved by the screw, which are the linear distances, are amplified into larger distances, which is the rotation of the screw. These rotations can be easily measured than the linear distances moved by the screw. Thus, the screw gauge is constructed in such a way that it incorporates the principle of micrometer screw. In addition to the screw and the nut, a U-shaped frame is attached at one end of the nut. This nut, also called the sleeve, has readings on it. These readings measure the linear distance moved by the screw. This scale is called the linear scale or the pitch scale. The other end of the U-shaped frame has a metal projection called the stud. When the screw is moved forward, the stud and the screw together hold the object firmly. The screw is attached to a milled head with a sloping edge which rotates over the sleeve. The sloping edge has a scale which is called as a circular or a head scale. The pitch of the screw gauge is the linear distance moved by the screw divided by one rotation of the screw. To find out the pitch, the circular scale is rotated to bring the zero mark on the reference line. The linear scale or the pitch scale reading is noted down. We count the number of divisions on the linear scale completely uncovered by the cap. Here it is 2.0 millimeters. Now we rotate the screw 5 times. When the zero mark of the circular scale again arrives at the reference line, one rotation is said to be completed. We again note down the linear scale readings after 5 rotations. It is 7 millimeters. We get the linear distance moved as 7.0 minus 2.0, which is 5 millimeters. Thus, pitch can be calculated as 5 millimeters divided by 5, which is 1 millimeter. The pitch of the screw is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Therefore, the distance moved by the screw in one complete rotation of the circular cap is 1 millimeter. Now, the circular cap is divided into 100 divisions. Then, if the cap is moved through one division, then the distance moved is 1 by 100th of the pitch, which is the least count of the screw gauge. Pitch divided by number of divisions on the circular scale is equal to 1 divided by 100 mm, which is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter, which is 10 to the power of minus 5 meters, which is 10 into 10 power of minus 6, that is equal to 10 into micrometer.
In addition, as the least count of the screw gauge is of the order of micrometer, it is called as the micrometer screw gauge. Now, either due to the manufacturing defect of the screw gauge or due to the wear and tear of the screw threads, which gives rise to irregular gaps or increased gaps, the given screw gauge may be subjected to contain the most commonly occurring errors, which are known as zero error and the backlash error. Sometimes in the given screw gauge, when the screw completely touches the fixed stud, the zero of the circular scale does not coincide with the reference line. Then the instrument is said to contain the zero error. When the ratchet is rotated, there is a certain lag in the linear movement of the screw, which is indicated by the jerky motion of the screw. In some other cases, the screw does not start moving immediately in the opposite direction when the ratchet is rotated in the reverse direction. This is due to the improper alignment of threads, which gives rise to increased gaps. This type of error is called as the backlash error. Calculating zero error. In order to find out the amount of zero error the device contains, the position of the zero of the circular or the head scale with respect to the reference line is observed. The screw gauge is turned upright down with its U-shaped frame at the bottom and the ratchet at the top. For example, in screw gauge A, when the zero of the circular scale is to the right of the reference line of linear scale, it can be imagined as if an object is being placed and the screw gauge is already measuring a certain distance, which in reality it is not. Thus, the screw gauge is measuring an extra length, and hence this extra length should be subtracted from the observed length to obtain the actual length. This type of error, in which the zero of the circular scale is to the right of the reference line of the linear scale, is called as the positive error, and the correction we make is negative. Here, in this case, the 11th division of the circular scale coincides with the reference line. Thus, the extra length it measures is 11 into 0.001 centimeters. The correction is minus 11 into 0.001 centimeters. Similarly, in screw gauge B, the zero of the circular scale is to the left of the reference line. The device is measuring less distance than the actual length. Therefore, this distance is added to the observed length to obtain actual length. This type of error is called negative zero error, and the correction is positive. In this case of screw gauge B, the 90th division of the circular scale coincides with the reference line. Therefore, the zero error is 10 into 0.001 centimeters, and the correction is plus 10 into 0.001 centimeters. Now, after determining the least count, pitch and the zero error of the screw gauge, we are now ready to find out the length of any object. Let us say, to find out the diameter of a wire, we place the wire between the fixed stud and the screw by slowly moving the screw with the help of the ratchet until the wire is gently held. The diameter of the wire is nothing but the distance the screw moved from position A to position B. This distance is equal to length of the portion X plus length of the portion Y. As it can be clearly observed, portion X is 1 millimeter as the scale is graduated in millimeters. That is, the screw has completed one rotation. Portion Y is less than 1 millimeter because the screw did not complete a full rotation but crossed 31 divisions on the head scale. Therefore, mathematically, for one complete rotation of the screw, the reading is 1 millimeter. That is, 100 divisions is equal to 1 millimeter. Therefore, 31 divisions is equal to 31 into 1 millimeter divided by 100. Therefore, portion Y is equal to 0.31 millimeters.
total length is equal to portion x plus portion y, which is 1 mm plus 0.31 mm, which is 1.31 mm or 0.131 centimeters. Now, portion x is equal to linear scale reading. Portion y n is equal to 31 into 1 mm divided by 100. 31 is the number of divisions of the circular scale crossed by the reference line of the linear scale. 1 mm divided by 100 is the least count of the screw gauge. Therefore, total reading can be represented as linear scale reading plus n into least count. चलिए, आपने स्क्रू गेज का एनिमेशन देखा, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया था कि क्या क्या चीज़ें हैं स्क्रू गेज के पास और उसका प्रिंसिपल क्या है एंड ऑल। तो मैं जस्ट ब्रीफ में आपको जो फॉर्मूलेज याद रखने हैं यहाँ पे वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्क्रू गेज का एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सो इट हैज़ ए यू शेप्ड फ्रेम, ठीक है, यू शेप्ड फ्रेम, और इसके जस्ट सामने यू हैव ए स्टड, यू कॉल दिस स्टड, ठीक है। देन यू हैव ए स्क्रू, and screw has threads, alright, and it passes from here. So on the other side now you have your sleeve, which is little broader, and on this sleeve you have your circular scale mounted, okay. This is the diagram, a rough diagram dealing with the screw gauge, alright। यहाँ पे आपके पास एक स्केल होती है, लीनियर स्केल जैसे हम बोलते हैं, मेन स्केल और लीनियर स्केल, ठीक है। इस पर आपके डिविजन्स होते हैं, यू हैव 0, देन यू हैव डिविजन्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it's this kind of divisions you have. It's a simple scale, okay. Then you have another scale which you call the circular scale, and here say you have the 0 of your circular scale. Here you have 1 2 3, and on the other hand you have 99 98 97. So it's a circular round स्केल होती है। इस पर मोस्टली 100 डिविजन्स रहते हैं सर्कुलर स्केल पे, बट 50 डिविजन्स भी हो सकते हैं एज पर द क्वेश्चन जो भी देगा वो आपको लेना है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग्स फटाफट अपन समझ लेते हैं। तो ये वाली जो स्केल है बच्चों, उसको बोलते हैं अपन लीनियर स्केल, लीनियर स्केल, या फिर मेन स्केल, ठीक है। और ये मोस्टली इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर ही रहता है, इस पर मिलीमीटर के मार्क्स रहते हैं। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन जो बोल रहा है आप उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये जो स्केल है, दिस स्केल इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल। और ये जो वाइट स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप मेन स्केल की, ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। हाउ यू काउंट कि आपने सर्कुलर स्केल को 1 राउंड घुमा दिया है, वो सिंपली 0 है, और 0 आप वापस यहाँ पे आपको 0 दिख जाए रेफरेंस लाइन के सामने, तो फिर आप मान लेंगे कि 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ हाउ यू मेजर द नंबर ऑफ रोटेशंस, ऑलराइट। एंड दिस इज सिंपली द फ्रेम, और ये आपका स्क्रू है, ठीक है, दिस इज स्क्रू। एंड व्हाट एल्स यू कैन मार्क, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। दिस इज जस्ट द यू फ्रेम। तो आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज स्क्रू गेज, हाउ इट लुक्स लाइक, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं उसे स्क्रू की मदद से, वो सब आपको सिखाया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज क्या है बच्चों, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। यस, माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है माइक्रोमीटर स्क्रू का प्रिंसिपल, तो वो होता है कि व्हेन ए स्क्रू इज़ रोटेटेड देन
it along with the rotation it moves linear also either left or right in a nut. ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है एक माइक्रोमीटर स्क्रू का कि जब हम स्क्रू को रोटेट करते हैं तो आगे पीछे ट्रैवल करता है एक नट के अंदर. ठीक है, तो आपने नट एंड बोल्ट तो सुने ही होंगे. तो जो इम्पोर्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है आपका पिच, जो आपको याद रखना चाहिए. पिच का डेफिनेशन क्या है तो आप वीडियो में से भी नोट कर सकते हैं या फिर मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दे रहा हूँ. इट इज़ distance traveled by screw in one complete rotation. कि एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना आगे पीछे जा रहा है उसे क्या बोलते हैं अपन, पिच. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ डिस्टेंस between two consecutive threads. ठीक है, तो pitch can also be defined as distance between two consecutive threads. All right. ठीक है, अब पिच निकालते कैसे हैं तो पिच निकालने का सिंपल तरीका होता है बच्चों. पिच आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू. पिच आपको क्वेश्चंस में जो निकालनी होगी वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू, ये कहाँ से मेजर्ड होगी, सो विल बी मेजर्ड फ्रॉम लीनियर स्केल. ठीक है, measured from linear scale divided by number of rotations. तो कितनी डिस्टेंस में मूव किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, ये आपको क्या दे देगा, पिच. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर दैट स्क्रू से स्क्रू moved by 5 millimeter when say 100 rotations are made. Find its pitch. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप फटाफट क्या लिख देंगे, पिच वो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस मूव्ड इज 5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस 100, सो विल बी राइटिंग 0.05 mm. यस, दिस विल बिकम द पिच. ना बच्चों, पिच के बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको काम में आता है इस पर्टिकुलर डिवाइस में वो रहेगा आपका लीस्ट काउंट. ठीक है, लीस्ट काउंट वैसे वहाँ समझाया गया. तो लीस्ट काउंट क्या है कि आपके सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स बने हुए हैं, सर्कुलर स्केल यानी जो सिलेंडर पे डिवीजन्स बने हुए हैं, आप उसे सिर्फ उतना ही मूव कराइए जितना कि जिससे कि एक ही डिवीज़न एडवांस करे सर्कुलर स्केल का. सपोज अभी रेफरेंस लाइन के सामने, ये रेफरेंस लाइन है, इसके सामने 0 आ रहा है और इधर 99 है और इधर 1 है. मैं इसे घुमाता हूँ और घुमाने के बाद यहाँ पे अब मुझे 1 दिखने लगता है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 2. तो इतने में जो मूवमेंट हुआ होगा स्क्रू का वो मैं यहाँ मेजर कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट आप कैसे लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग द पिच. ठीक है, कि एक पूरे रोटेशन में कितना घूमता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट. से if I write here in the same example I am taking here, say in previous screw, find least count if circular scale को CS से लिखेंगे अपन, has 100 divisions. यानी सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर,
आप लीस्ट काउंट निकालोगे इसका, और लीस्ट काउंट आ जाएगा आपके पास, पिच कितनी आई है 0.05 mm डिवाइडेड बाय 100, तो वो आ जाएगी आपके पास 0.0005 mm। जैसे आप माइक्रोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसे क्या लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इस साइड में 3 डेसिमल अगर पीछे लेके जाऊँ तो मेरे पास आ गया है 0.5, 3 नहीं अपन 4 भी ले जा सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। मैं चलो 3 लेके जा रहा हूँ, सो 0.5 इंटू इधर लेके जा रहा है तो 10 की नेगेटिव पावर्स आएगी -3 इंटू मिलीमीटर्स 10 की पावर -3 इंटू मीटर्स, तो आपके पास आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर। और इसी रीज़न की वजह से हम इसे माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोलते हैं, आपने वीडियो में देखा ही है। तो आइडिया समझिए बच्चों, क्या है कि आप वर्नियर कैलिपर पे सिंपली क्या किया करते थे। वर्नियर कैलिपर में आपके पास सीधी लाइन थी, उसे आपने यहाँ पर 10 हिस्सों में बांट दिया, ऊपर नीचे 9 हिस्सों में बांट दिया, और इसकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की मदद से आप मेजरमेंट ले रहे थे। पर आप आंखों से कितनी क्लोज लाइंस देख सकते हैं कि आपने 1 मिलीमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 हिस्सों में ही बांट सकते हैं। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा सा होता है ना, आँख से देखेगा ही नहीं फिर। तो उसी से बचने के लिए जो स्क्रू है आपका, यहाँ पे स्क्रू लीनियर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा है, आप आंखों से नहीं देख पाएंगे कि ये स्क्रू कितना आगे है कितना पीछे गया, पर आप डेफिनेटली क्या काउंट बड़े प्यार से कर सकते हैं, आप बड़े प्यार से नंबर ऑफ रोटेशन काउंट कर सकते हैं। यस, तो आपकी काउंटिंग इजी होगी नंबर ऑफ रोटेशन में, और उसकी मदद से आप छोटे छोटे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको मेज़र कर पा रहे हैं कि स्क्रू कितना आगे गया कितना पीछे गया। तो एक तरीके से आपने लेटरली छोटी छोटी डिस्टेंसेस को मैग्नीफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस। तो ये बेसिक आइडिया है बच्चों स्क्रू गेज का, जो वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहें तो उसे वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पिच का। ठीक है, और इन जनरल आपको अगर नहीं कुछ दिया जाए तो आप मान के चलिए कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने रहते हैं, 100, कुछ नहीं दिया जाए तो। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट तीसरा फॉर्मूला है बच्चों, एक तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, आप ध्यान से देखिए। आपको मैंने एक फॉर्मूला पिच का बताया, आई कैन जस्ट राइट इट एज फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला इट इज़ पिच, सेकेंड फार्मूला आपका जो है वो लीस्ट काउंट। ठीक है, और जो थर्ड फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ इट इज़ रिलेटेड टू मेजर्ड वैल्यू। तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो आपके मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे कैसे लिखते हैं, वही MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू, वहाँ VSC लिखा करते थे, यहाँ अपन CSC लिखते हैं, एंड एज यूजुअल ±0 एरर। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी। MSR आपका क्या होता है, इट इज़ मेन स्केल रीडिंग, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और CSC को बोलते हैं अपन सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस। सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। तो आपको आखिरी में यही ध्यान रखना है, 0 एरर निकालना भी वहाँ बताया गया है, तो मैं उस पर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू टेक फॉर दिस स्क्रू गेज। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ स्क्रू गेज पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रू गेज, लेट अस राइट। इन ए स्क्रू गेज, screw advances by 2 millimeter in 20 rotations. 2 millimeter in 20 rotations. There are, full stop के बाद लिखना है, there are 100 divisions on circular scale. Full stop. While measuring diameter of a thin wire, while measuring diameter of a thin wire, main scale reads 5.5 millimeter. Main scale reads 5.5 millimeter, and 45th division of circular scale, 45th division of circular scale coincides with reference line, coincides with reference line. Find pitch. आपको फाइंड क्या क्या करना है, पिच। दूसरा पार्ट जो आपको फाइंड करना है वो है लीस्ट काउंट। तीसरा पार्ट जो आपको फाइंड करना है वो है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, डायमीटर ऑफ द वायर, इफ आई आस्क
डायामीटर ऑफ द वायर यू हैव टू फाइंड। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो क्या क्या दिया है उसने मुझे। सबसे पहले उसने मुझे दे दिया है कि स्क्रू एडवांसेस बाई 2 mm इन 20 रोटेशंस। तो पिच सीधी सीधी निकल जाएगी अपने पास 2 mm डिवाइडेड बाई 20। सो पिच आ गई बच्चों मेरे पास यहाँ पर 0.1 mm, सिंपल। दूसरा आपका पार्ट है लीस्ट काउंट, बहुत ही ईजी है। लीस्ट काउंट के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, वो कितने दिए हैं 100। तो इट इज़ पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल जो कि 100 है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों लीस्ट काउंट आ गया मेरे पास 0.001 mm, जैसे मैं 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब तीसरा पार्ट है मेजरिंग वैल्यू निकालने का। तो मेजरिंग वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू इज सिंपली व्हाट इट इज़ MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू CSC। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो भी इसने डायरेक्ट दे दी है मुझे, इट इज़ 5.5 mm। आपके पास लीस्ट काउंट आ चुका है 0.001 mm। बस एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने ये वैल्यू mm में लिया है तो फिर सब कुछ mm में ही लीजिएगा, ठीक है। CSC इट्स नंबर विच इज़ 45। तो आपका जो आंसर है मेजर्ड वैल्यू का वो आ जाएगा 5.5 mm प्लस 0.045 mm। सो आपका जो आंसर है वो आएगा 5.545 mm, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन यू हैव। Okay, now let us solve one more question here. लिखिए, pitch of a screw in a screw gauge, pitch of a screw in a screw gauge is 0.1 mm and circular scale has 100 divisions. Circular scale has 100 divisions. Full stop. When stud and screw are in contact, then zero of linear scale is completely visible, and 30th division of circular scale coincides with reference line. Okay. Find zero error. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको। इसमें बोल रहा है पिच कितना बोल रहा है आपको, पिच बोल रहा है 0.1 mm, ठीक है। फिर दूसरा दिया है सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स, सो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने हैं 100, बिल्कुल। फिर अब बोल रहा है नथिंग इज प्लेस्ड बिटवीन स्टड एंड स्क्रू, ओके, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट, दिस इज स्टड एंड दिस इज स्क्रू, दे आर इन कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। So in this situation also, this is the reference line, here is the zero of reference line, it is just visible, ठीक है। मैं कुछ पार्ट ही बस दिखा रहा हूँ आपको, this is your screw gauge here, ठीक है, this is just visible, this zero, and this mark is corresponding to 30, ठीक है। 30th division is coinciding with द रेफरेंस लाइन। कोइंसाइड किसे करना चाहिए था, जीरो को कोइंसाइड करना चाहिए था, पर कोइंसाइड कौन कर रहा है 30 कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 29, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 31, तो बेसिकली जीरो तक नहीं जा रहा है। तो ये बच्चों क्या करेगा, दिस विल ऑलवेज रीड अ लिटिल वैल्यू मोर। तो इसमें कौन सी एरर है आपके पास, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या जीरो एरर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट आप फटाफट निकाल ही सकते हैं। पिच डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे पिच है 0.1 mm डिवाइडेड बाई 100, सो आपके पास लीस्ट काउंट आ गया 0.001 mm, ठीक है। अब जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला वही है जो मैं आपको
वर्नियर कैलिपर में बताया था, तो MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSC की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बच्चों, CSC। तो MSR कितना है अपने पास, 0, MSR 0 इज जस्ट विजिबल, सो 0 प्लस LC इज 0.001 mm एंड द सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो है 30। तो इस तरीके से अपने पास आ गया ये 0.030 mm इज़ द ज़ीरो एरर। और ये कौन सी ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है बच्चों। तो जब भी मेजरमेंट आप लोगे तो आपको ये एरर इसमें से क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी उसमें से, सब्ट्रैक्ट। सो नाउ इफ़ आई टेल यू, ठीक है, आप इतना नोट करके इसके सेकेंड पार्ट में लिखिए, इफ़ a wire is placed between screw and stud, then main scale reads 1 mm and 65th division coincides with reference line. 65th division of circular scale coincides with reference line. Find diameter. तो देखिए इसमें और क्या दे दिया उसने मुझे, जब इस वायर प्लेस कर दिया तो मेन स्केल रीडिंग इज़ 1 mm उसने मुझे बता दिया, और उसने मुझे CSC बता दिया 65। ठीक है, और पूछ रहा है रीडिंग बताओ, तो आप क्या करोगे, मेजर्ड वैल्यू विल बी MSR प्लस LC इंटू CSC माइनस ज़ीरो एरर, क्योंकि ये कौन सी ज़ीरो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में, पॉजिटिव। तो MSR इज़ 1 mm प्लस LC इज़ 0.001 mm, CSC is 65 and zero error is 0.03 in millimeter. Alright, so what you have is 1 mm plus you'll have 0.065 mm minus 0.030 mm. So what you have is 1 mm plus 0.35 mm. So what you have is 1.35 mm as your answer. So this will be the answer of the for diameter of this wire. पॉजिटिव ज़ीरो एरर थी इसलिए आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहीं पे अगर आपको ये दिया होता सेम नंबर्स के साथ दैट इफ़ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल इज़ नॉट विजिबल और बियरली विजिबल, ठीक है, से इफ़ लैंग्वेज इज, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, if 0 of main scale is not visible और इसे हार्डली विजिबल, ऐसा भी आ सकता है, बेयरली विजिबल ऐसा भी आ सकता है, हार्डली विजिबल, ठीक है, मीन्स नॉट विजिबल ओनली, व्हेन स्टड एंड स्क्रू are in contact, stud and screw are in contact, then find zero error and diameter of wire. नंबर्स अब भी वही हैं बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, तो इसमें भी ज़ीरो एरर निकालने के लिए वही मेथड यूज़ करते हैं अपन अभी भी, MSR प्लस LC इंटू CSC, ठीक है। MSR ये नेगेटिव ज़ीरो एरर हो जाती है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ज़ीरो ऑफ लीनियर स्केल इज़ नॉट विजिबल, मतलब सर्कुलर स्केल कुछ यहाँ से जा रही है, मींस जो स्टड है वो और ज़्यादा घूम गया है, और कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है जो मैंने उधर दिया हुआ था आपको 30th, तो आप बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे, तो आप MSR को क्या बोलेंगे कि ये कितना है, -1 mm, LC आपको ऑलरेडी पता है 0.001 mm, CSC भी आपको ऑलरेडी पता है 30 फॉर द ज़ीरो एरर, इधर जाना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, CSC कितना दिया था मैंने आपको 30, आप चेक करिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, -1 प्लस 0.030, तो ये आ जाएगा अपने पास नेगेटिव में माइनस ऑफ 0, और यू सेइंग 0.97 mm, इतना इसमें क्या है भाई,
नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर ज़ीरो एरर। अब ये जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है उसे आपको अपने मेजरमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायामीटर की बात करूँ, मेजर्ड वैल्यू इट विल बी MSR प्लस LC इंटू CSC, एंड इस बार मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करूँगा या ऐड करूँगा, सिर्फ वैल्यू है ना। तो MSR एज यूजल आपको दिया हुआ है 1 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.001 mm इंटू CSC 65 प्लस IL से 0.970 mm અને ऐड कर दिया तो मेरे को मिल गया 1 mm प्लस इट विल बी 0.065 mm प्लस 0.970 mm. So you will add simply without any problems. You can add, it will be 5 here, यहाँ पे आएगा 6, आई एम सॉरी 7 and 6 5, so this measurement will be 2.035 mm. ठीक है बच्चों, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। इसके ऊपर आप ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर नीड स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू गो टू मच डेप्थ इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंजीनियर्स को इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उनके एग्ज़ाम में ये डिटेल में आते हैं। तो आपके लिए अगर मैं बताऊँ तो आई डेलिबरेटली गिव यू द डिटेल डिस्क्रिप्शन हियर टू अंडरस्टैंड, बट आप मोस्टली फोकस करेंगे यहाँ पे ऑन द फॉर्मूलेस पार्ट कि ये फॉर्मूलेस कैसे हैं, और आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अभी तक नीट के सिलेबस में तो ये नहीं था, ठीक है, पर एम्स में एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता था, हो सकता है अब आगे आ जाए, तो इसलिए हमने पढ़ लिया है इसे, ठीक है। तो दैट्स इट, आपको असाइनमेंट मैं सॉल्व करने के लिए दूंगा, जो असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी दे रखा है वो, और कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगा मैं इस पर, तो उसे आप ज़रूर ट्राई करें और उसके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल से आपको जो नया चैप्टर मिलेगा इट विल बी काइनेमैटिक्स।